Without any qualms, I can say he was one of the बेस्ट एडिटर्स ऑफ पाकिस्तान. जर्नलिज्म ही जर्नलिज्म नहीं रही है. अच्छा, इंडियन कोई चीज़ नहीं. आई वाज रियली अगेंस्ट एनीथिंग इंडियन. भाई मैं अपने लोगों को फ़रोग दूंगी, आगे बढ़ाऊंगी. हमारा स्टार बज़ एक सेक्शन होता था जिसमें हम चटपटी चीज़ें भी डालते थे, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरों को डाउन करें, डिग्रेड करें. मुझे ये बताइए, ज़िंदगी में बीमारी, परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, एंड यू आर माशाल्लाह अ कैंसर सर्वाइवर. How did that affect you? जो चीज़ आप अच्छे तरीक़े से करते हैं उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है. इट्स हाउ यू कॉम्बैट इट, हाउ यू ट्राई टू लिव अ लाइफ विद दीज प्रॉब्लम्स. तो कभी हिम्मत ना हारिए और अपना काम करते रहें, मेहनत के साथ काम करें. Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future, because stories matter. A very warm welcome and assalamu alaikum to all Pakistanis everywhere, and we are here in the good side and meet people who belong to different walks of life and people who make Pakistan Pakistan. आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं अभी आपसे थोड़ी देर में तारुफ कराऊंगी, लेकिन बिफोर दैट आई मस्ट से दैट शी इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन. आई लुक अप टू हर एंड वी आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह विद हर लाइफ जर्नी, हर लर्निंग, हर एक्सपीरियंस, एंड हम इनसे सीखेंगे, समझेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. खुर्शीद हैदर. She studied from England and did her MA from Karachi University in English literature. She has taught English in educational institutes and media studies in universities. She's a journalist by profession. Khurshid has worked in Dawn newspaper in its various weeklies such as magazines, Young World, supplements, and was editor of the Review. She launched the Showbiz section Images and was its editor for 10 years. She launched the Showbiz section Images and was its editor for 10 years. Her articles have been printed in the various weeklies of Dawn. She then joined Hum Network in the capacity of head PR and publications and editor of Style 360 Glam, and edits the English section of food magazine Masala. She's also the corporate communications head for Hum Network. She heads the Sindh chapter of South Asia Women in Media and is the counsel of South Asia Free Media Association. She has been president of Professional and Media Women's Organization in the past. Wow. Let's just talk to her, because what I read is something जो मेरे लिए जितना impressive है, मेरे ख्याल से मेरे सुनने वालों को, देखने वालों के लिए भी होगा, but we need to hear from her. Khurshid Appa. Wow. I mean, again, I know you personally for so long, but reading your intro was another level. So let's start with your coming back from England and joining Habib Public School, and then we'll go forward with that. देखो, अगर तुम ये बात कर रही हो कि इंग्लैंड से जब हम आए तो आई वॉज अ यंग पर्सन देन. आई वॉज अ चाइल्ड. सो मैंने अपना यहाँ पे आई डिड माई इंटर एंड देन आई डिड माई MA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी. तो स्कूलिंग मेरी इंग्लैंड में हुई है, और फिर उसके बाद जब MA कर लिया तो फॉर सम इयर्स आई जॉइंड हबीब पब्लिक स्कूल विद इत्तेफाक से. वो अपॉर्चुनिटी, वो अपनी थीसिस कर रहे थे MA की. तो Dr. Rizvi was the principal in Habib Public at that time. तो उनकी बीवी भी प्रिंसिपल थी. So we met at the bus stop. मैं अपनी शायद बस, यूनिवर्सिटी बस का इंतज़ार कर रही थी और वो अपने ऑफिस, वो स्कूल जा रही थी. So she started a conversation कि तुम क्या कर रही हो. मैंने कहा मैं अभी मतलब MA मैंने
वहाँ से किया है और बिल्कुल आखिरी मेरे वो हैं। तो कहने लगी कि तुम आ जाओ, मेरे हस्बैंड जो हैं वो हबीब पब्लिक के प्रिंसिपल हैं, तो उनको ही इज़ लुकिंग फॉर गर्ल्स हु, अब जैसे उनको पता चला कि मैं MA इंग्लिश में कर रही थी, उन्होंने कहा लुकिंग फॉर गर्ल्स हु नो इंग्लिश वेल और लिटरेचर में MA अगर कर रही हो तो यू वुड बी गुड इन इट. So I thought about it and I did join. And I became a teacher at Habib Public. और उसके बाद फिर आपके जर्नी टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपने मीडिया स्टडीज पढ़ाया. अच्छा, नहीं दैट वो एक छोटा मतलब कुछ साल के लिए, बिकॉज जाहिर है आप खुद भी छोटे होते हैं. आई डिड माई MA एट अ वेरी यंग एज, बिकॉज व्हेन आई केम फ्रॉम इंग्लैंड, छोटी थी, आई जम्प्ड क्लासेस एंड so I was barely 20 when I did my MA. तो उस वक्त फिर barely 20 हबीब अब नहीं कर सकते आप. अब आपका वही 16-18 साल हो गए हैं ना. पहले तो आप 16 साल में 1 से 16 तक आप कर सकते थे. तो वो करने के बाद फिर I was in Habib Public but I went to America. वहाँ मैं 1.5 साल तक वहाँ रही. और उसके बाद मैंने आई केम बैक, तो आई वाज वंडरिंग कि भाई क्या करूँ अब मैं. फिर हबीब पब्लिक वालों ने बुलाना शुरू कर दिया. हसीना मोइन जो थी वो हमारी रिश्तेदार भी होती हैं और उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती, हमारा ग्रुप भी था. उन्होंने कहा कि तुम बजाय मतलब तुम आओ, वी नीड वो उर्दू जो TV मैगज़ीन कहलाता था वो उसकी एडिटर थी. उन्होंने कहा वी नीड एन इंग्लिश, हमारा इंग्लिश मैगज़ीन भी है उसका, तो वी नीड अ इंग्लिश एडिटर मतलब फॉर द इंग्लिश सेक्शन. सो आई सेड आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई हैवंट डन माई MA इन जर्नलिज्म. मैंने तो MA इंग्लिश में किया है. कहेंगे नहीं बस माई इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. सो हम गए. लेकिन देखो एक चीज़ होती है कि तुम कुछ भी कर रहे हो उसमें अगर तुम दिल डालोगे, मेहनत से काम करोगे तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो. हाँ ये ज़रूर है कि जिस चीज़ में तुमने सिखाया गया है तुम्हें वो आपकी मदद करता है. अब ये मैं नहीं कह रही हूँ अगर डॉक्टर जो है वो एक इंजीनियर डॉक्टरी करना शुरू कर दे, नो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट मैंने सीखा, समझा एंड कर लिया. बहुत मज़ा आने लगा. फ्रॉम एजुकेशन टू जर्नलिज्म, द जंप yeah. on the other side. And then वहाँ के challenges आप अगर थोड़ा सा बताएं, being a woman, a young woman in the industry, print media, और वो येलो जर्नलिज्म क्या चीज़ होती है वो भी ज़रा बताइए. अच्छा, इसमें तो मैं चूँकि मैं अगेन वो आई स्टेप्ड इनटू शोबिज़, क्योंकि वो TV टाइम्स जो था वो मैगज़ीन ऐसा था, तो वो मीटिंग ऑल दीज सेलिब्रिटीज़ एंड इंटरव्यूज़ होना, सब कुछ करना. तो उस हिसाब से यू नो आई वाज अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड, और जो एक होता है ना आपका डेली जो अखबार की जो चीज़ें होती हैं वो जर्नलिस्ट दूसरे होते हैं. ये शोबिज़ जर्नलिज्म था. तो इसमें वो हम करते रहे. लेकिन उसके आई थिंक मैंने 1.5 साल ही क्या होगा या उससे भी कम, तो एक बड़े ज़बरदस्त आई बीन सो लकी, आई मेट सच वंडरफुल पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया. तो अनवर इनायतुल्लाह एक साहब होते थे, बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट, और किताबें भी लिखी हुई थी. तो वो हमारे लिए TV टाइम्स के लिए भी लिखते थे. तो जो उस ज़माने में तो PTV होता था, तो उन्होंने वो उसके लिए राउंड अप लिखते थे, जो सीरियल्स होते थे TV के लिए, तो उसका एक पूरा डॉन के लिए लिखा करते थे, हमारे लिए भी लिखते थे. तो मैं जो हमारा चीफ एडिटर था ना, उन्होंने उनसे मेरी कुछ मतभेड़ हो गई. तो आई डिसाइडेड आई कैन नॉट वर्क हियर एनी मोर. तो अब मैंने कहा मैं आराम करूँगी, घर में बैठूँगी थोड़े दिन, फिर आई स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब. मैं घर पहुँची हूँ, उन्होंने कहा कि भाई तुम आ जाओ डॉन, ये न्यूज़पेपर, अनवर इनायतुल्लाह ने, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट फॉर डॉन एज वेल. एक मैगजीन होता था उस ज़माने में, संडे को निकलता था. तो मैंने कहा नहीं अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी, लेकिन दे नीडेड समबडी देयर.
तो यंग वर्ल्ड जो अभी भी डॉन का निकलता है, तो उन्होंने कहा कि महसून हुसैन निकालती थी उसको, तो शी नीड्स अ पर्सन, तो आई थिंक यू फिट इन वेल, तो तुम आ जाओ। तो इस तरीके से फिर मुझे, यानी एक हफ्ता भी मैंने आराम नहीं किया था कि आई वाज इन डॉन। ओके। तो और फिर इमेजेस उसके बाद की कहानी है। हाँ, स्टार्टिंग, आई मीन इनिशिएटिंग इमेजेस इन डॉन। हाँ, आई एक्चुअली जब मुझे अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ था वहाँ, अगेन 1.5 साल भी, 1.5-2 साल, क्योंकि यंग वर्ल्ड में हम रहे, तो दे डिसाइडेड, डॉन के जो एडमिनिस्ट्रेशन समझो, द एडिटर अहमद अली खान, ब्रिलियंट एडिटर, वही मैं कह रही हूँ, मेरी इतनी, आई बीन सो लकी टू मीट सच ब्रिलियंट पीपल इन माई लाइफ। तो अहमद अली खान एडिटर होते थे, एंड विदाउट एनी क्वाल्म्स आई कैन से ही वाज द वन ऑफ द best editors of Pakistan. Internationally, I would say he was at par with brilliant editors around the world. और उनसे बहुत सीखा भी, और इतने ये लोग, इतने बड़े बड़े लोग, और कोई गुरूर नहीं, डाउन टू अर्थ, हेल्पिंग अदर्स। अब हम कितने छोटे हो, वो किस मुकाम पे। फैज़ अहमद फैज़ के साथ वो हुआ करते थे, ही वाज अ गुड राइटर, लाहौर में भी रहे, तो तुम इंटेलेक्चुअल लेवल उनका देखो, उर्दू इतनी शानदार, हम अपनी अंग्रेज़ी में बोल रहे होते थे, वो उर्दू में हमें जवाब दे रहे होते थे, तुम बड़े सिंबल के रहते थे। मतलब इंग्लिश तो उनके डॉन के एडिटर थे, बट वो जो एक रख रखा हो, तो मुझसे कहने लगे आपको फ़ारसी आती है? मैंने कहा जी नहीं मुझे क़तई तौर, तो उनको फ़ारसी भी आती थी। तो उस ज़माने के लोग तो ऐसे ही होते थे ना, कि दे न्यू एवरीथिंग, ज़माने, और फिर शायरी भी और नसर भी, और इंग्लिश इतनी ब्रिलियंट, एडिटोरियल्स डॉन के लिए लिखते थे भाई। तो वहाँ पे फिर जब मैं आई, तो राउंड अबाउट आई थिंक 1.5 साल ही रहा होगा। फिर मुझसे जो उधर के शोबिज़ स्टार्टेड coming up through images. No. अच्छा, before that. पाकिस्तान, कराची, हम तो कराची के थे, तो कुछ 1-2 चैनल्स भी शुरू हो गए थे उसमें। तो इन्होंने कहा कि फ्यूचर शोबिस का बहुत ब्राइट है, बट खान साहब, हम उनको खान साहब कहते थे, खान साहब बड़े परेशान इस बात से थे कि ये इतना एक न्यूज़पेपर है, डॉन जैसा न्यूज़पेपर, जो एक सीरियस न्यूज़पेपर है, इसके बहुत पुराने रीडर्स हैं, जो मतलब आर्दशर कावस जी हमारे लिए लिखते थे। वी हैड ऑल दोज ब्रिलियंट राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स डॉन के अंदर, और जो लोग काम करते थे वो बड़े सीजन लोग थे। और खान साहब कहते थे कि रिटायरमेंट तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद इंसान पुख्ता होता है, और वो जब बिल्कुल मन जाता है तो उसको निकाल दो, विजडम सारा उस वक्त आ रहा होता है। वो कभी कोई जाता ही नहीं था, वो माहौल इतना अच्छा था, और फिर इतना इनकी देखभाल ऐसी होती थी, तो nobody wanted to leave, चाहे तनख्वाह कम हो, लेकिन माहौल अगर अच्छा हो ना। और उस ज़माने में इतने, अब जैसे हम बड़े कमर्शलाइज हो गए हैं, हम पैसों को बहुत अहमियत देने लगे, उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो वहाँ पे फिर जब उनसे ये कहा गया कि नहीं, प्लीज़ थिंक अबाउट टेकिंग आउट अ शोबिज़ सेक्शन एज वेल फॉर डॉन, तो खान साहब ने कहा नहीं, मेरे रीडर्स तो भाग जाएंगे, और मेरे रीडर्स क्या कहेंगे, जो इतने पले बड़े हैं और बूढ़े हो गए हैं और बड़े हो गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यू विल हैव टू ट्राई। तो उन्होंने कहा ये अभी आई है खुर्शीद, और ये शोबिज़ का मैगज़ीन निकालती थी, तो लेट हर ट्राई। मैं हसीना आपा के साथ इंडिया गई हुई थी 1 महीने के लिए, बिकॉज शी हैड अ सीरियल देयर, वो लिख रही थी उनके लिए, तो वो मैं आई अकम्पनीड हर। सो जब व्हेन आई केम बैक, अच्छा उस दौरान यंग वर्ल्ड से मुझे खींच लिया, जो उसकी मैगज़ीन की एडिटर थी अंजुम नियाज़, शी वांटेड मी टू जॉइन द मैगज़ीन। मैगज़ीन हमारा बड़ा ज़बरदस्त होता था, वी हैड वीकलीज इन डॉन, तो मैगज़ीन था, फिर द रिव्यू था, थर्सडे रिव्यू के नाम जो थर्सडे रिव्यू कहलाता था, फिर वो ट्यूसडे रिव्यू हो गया, फिर वो सिर्फ रिव्यू के नाम से, तो ये फिर यंग वर्ल्ड था। तो ये सब मैगज़ीन्स जो निकलते थे,
तो उसमें बस शोबिज़ का नहीं था। तो अंजुम ने कहा कि शी इज़ हार्ड वर्किंग एंड शी वो करती है, तो फिर खैर वो खींच लिया मुझे। जब मैं वापस आई पता चला कि नहीं भाई, यू हैव टू टेक आउट शोबिज़ सेक्शन, अ मैगज़ीन। और मुझे उस वक्त कितने हुए होंगे, 2.5 साल हुए होंगे, मतलब थोड़ा अरसा वहाँ पे मैगज़ीन में। I said, I can't take out a showbiz magazine. मैं तो खुद ही I'm new in the field, and it's not easy. I mean, तो उस वक्त शुरुआत थी कंप्यूटराइज्ड चीज़ों की, और हमारे यहाँ सब कुछ आ गया था, लेकिन वो जो हेड थे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के, वो थोड़ा कर नहीं पाए थे उस वक्त तक कि उसको लॉन्च करते। तो जब ये कहा गया कि नहीं, निकालना है, खान साहब को कायल किया गया, तो पूरा कंप्यूटराइज्ड हमारे एक वो कंपनी थी, उन्होंने पूरा कंप्यूटराइज इमेजेस को बनाया। अच्छा, अब तुम ये देखो, रमज़ान का महीना, और मैं रोज़े भी रखती थी, और पूरे मेरा ख्याल है 17 घंटे में काम करती थी कि किस तरह से निकालना है, क्या करना है, क्या चीज़ डालनी है उसमें। तो रोज़े भी और साथ में ये, और घर जाती थी 4-5 घंटे, और फिर सुबह वापस उसमें। और इतने बेवकूफ़ थे कि खान साहब हर वक्त बुलाते रहते थे। अच्छा, इट हैड टू बी अंडर द लिड। मुझे मतलब सीक्रेसी, मैं बताऊं तुमको, सीक्रेसी इसलिए कि दूसरे अखबार वाले ना चुरा लें हमारे आइडिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक शोबिज़ निकाल रहे हैं। तो हमारा एक राइवल न्यूज़पेपर था, आई डोंट नो इफ आई कैन टेक द नेम और नॉट, तो उनको वो भी लगे हुए थे खोज में, एंड आई थिंक दे ऑल्सो वांटेड टू टेक आउट समथिंग। तो हमें खान साहब के पास 1.5, 2 घंटे रोज़ाना, 3 घंटे बैठे हुए हैं। इवन द पीपल इन डॉन डिड नॉट नो कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों इतना टाइम वहाँ पे चल रहा है। वो पूछते भी थे क्या कर रहे हो, तो हमें बिल्कुल मना किया गया था कि, एंड आई चोजन एन असिस्टेंट फॉर माई सेल्फ। तो वो कहते थे कि नहीं, प्लीज़ डू नॉट, क्योंकि थोड़ा सा लीक आउट करेगा तो वो भनक भी पड़ गई तो वो। सो हमने फिर मतलब उनके साथ बैठते थे। तो एक मगरिब हो गई, मेरा रोज़ा था, लेकिन छोटे थे, एंड आई वाज इन ऑ ऑफ द एडिटर। तो मेरा ख्याल है 10 मिनट गुजर गया, मैंने उनसे कहा भी नहीं कि भाई मेरा रोज़ा है, मुझे खोलना। तो फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, मैंने कहा अब तो बहुत लेट हो रहे थे, मैंने कहा खान साहब मेरा रोज़ा है, मैं ज़रा चली जाऊँ, थोड़ा सा पानी पी आया था। कह लगे आप इतनी देर से बैठी हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं, चाहिए फ़ौरन चाहिए। वो तो पता नहीं मेरा रोज़ा रहा या नहीं रहा, नहीं तो कबूल करने वाला तो अल्लाह में होता है। तो मतलब इतने नाइव थे हम, बस काम के मामले में तेज थे, लेकिन ओवरऑल एक नाइविटी थी। ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट और फॉर द एडिटर, और फिर ये कि काम वो हो रहा है। फिर बेचारे उनकी बेटी जो थी अंबर, वो इस्लामाबाद लाहौर में रहती थी, वो आती रहती थी। तो उन्होंने, उनकी बेटी नहीं, जो हमारे ओनर थे महमूद हारून, उनकी बेटी अंबर, तो वो जब कराची आती थी तो उनको दिखाएगा। खान साहब के तो समझ में नहीं आ रहा था। खान साहब ये कहते थे कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि शोबिज़ इतना नहीं है, और फिर ये कि हमारे रीडर्स मिजाज, रीडर्स विल रिजेक्ट। तो उन्होंने चूँकि he lost the war, everyone wanted it to come out, और इन्होंने डिसीजन भी सही लिया, was the right time, was the right time। तो वो जब वो निकला, मतलब वो पूरा कंप्यूटराइज्ड था, वो सिर्फ कंप्यूटर के थ्रू वो चीज़ें, कलर्स और वो सब बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया था उस कंपनी ने जो। तो वो खान साहब के समझ में नहीं आया, वो एम्बर ने उन्होंने पसंद किया, और फिर हमने निकाला। तो पूरा वो सिलसिला तो हो गया अखबार का, और किसी को, यानी डॉन में भी किसी को खबर हुई कि कोई है हलचल, कुछ हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ हो रही है। फिर जब निकला, अच्छा मैंने फिर वो नाम हमने जमा किया, मेरे असिस्टेंट और ने, कि ये नाम है। फिर खान साहब के साथ बैठे तो खान साहब ने उस नाम को इमेजेस चूज़ किया, मतलब उन नामों में से एक नाम, तो इमेजेस उसका नाम पड़ गया। और
जब वो निकला है तो तुम देखो 5,000 हमारी सर्कुलेशन बढ़ी है. अच्छा. एंड इट वाज सो पॉपुलर कि कलर्स. आई हैड the best of everything, यानी I had the best photographers, the best writers. किसी चीज़ की रोक टोक नहीं थी. तो तस्वीरें अच्छी, लेआउट्स अच्छे, राइटर्स अच्छे. तो वो तो लोगों की बस शोबिस के लोगों की कोशिश ये होती थी हमारे इंटरव्यू इसमें जाए किसी तरीके से. आई रिमेंबर कि इमेजेस जब हम पढ़ते थे तो हमें एक पर्सनल एक एस्पेक्ट एक नज़र आता था सेलिब्रिटीज़ का, उनकी लाइफ्स के अंदर एक इंसाइट मिलता था. एंड वी ऑलवेज वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग इमेजेस. जो अब इमेजेस है, अब तो खैर नाम भी उन्होंने उसका बदल दिया है, आइकॉन. हाँ, तो वो अब वो जो टच था ख़ास कि हमें वो इंसाइट मिल रही होती थी. क्योंकि टॉकिंग अबाउट इमेजेस, माई क्वेश्चन इज़ नाउ एम्ड के मीडिया जो है वो सेलिब्रिटीज़ को किस तरह प्रोजेक्ट कर रहा होता है. दे बिकम सो लार्जर देन लाइफ, है ना. एंड उनकी वो सिर्फ एक परफेक्ट साइड दिखा रहे होते हैं और उस इमेजेस को पढ़ के लगता था नहीं भाई ये तो हमारे जैसे इंसान हैं. दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल भी हैं, हेल्थ भी हैं, फैमिली के भी हैं. तो मीडिया ने, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो ई मीडिया, और अब तो सोशल मीडिया भी का दौर भी है, तो कहाँ तक मीडिया का हाथ है किसी भी पर्सनैलिटी को दिखाने में, गिराने में और चढ़ाने में. हाँ एग्जैक्टली. देखो मैं ये तुम्हारे ऊपर होता है कि तुम्हारी तरबियत कैसी हुई है, तुम्हारी नेचर कैसी है, कि जब कोई चीज़ तुम प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है. मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, मेरे राइटर्स अच्छे, गंदी ज़बान ना हो, और ये कि ऑब्जेक्टिवली अगर आप किसी को अगर आप रिव्यू भी कर रहे हैं किसी का एल्बम, क्रिटिकल तो आप क्रिटिकल एनालिसिस हो, बट नॉट पुटिंग दैट पर्सन डाउन. उसके अच्छे पॉइंट्स भी डालें, लेकिन जो चीज़ है वो आप रिव्यू कर रहे हैं तो यू हैव टू टेल द पर्सन कि नहीं इसमें ये खराबी थी, बट डू इट इन सच अ वे कि वो बैठ ना जाए. ऐसे होता है कि लोगों ने गाना छोड़ दिया, दूसरी जगह छपा और उन्होंने इतना उसको उड़ाया. वी डोंट हैव द राइट टू डिग्रेड नहीं करें. वी डू नॉट हैव द राइट टू पुट पीपल डाउन, which is very common nowadays. Nowadays तो चीज़ ही दूसरी, अब तो आपकी जर्नलिज्म ही जर्नलिज्म नहीं रही है. उस वक्त ये कि अच्छा इंडियन कोई चीज़ नहीं, आई वाज रियली अगेंस्ट एनीथिंग इंडियन. भाई मैं अपने लोगों को फ़रोग दूंगी, आगे बढ़ाऊंगी. तो एक तो ये चीज़ थी. दूसरा ये कि द लैंग्वेज हैड टू बी गुड, और आप सीरियस भी चीज़ डालिए और आप शोबिस की भी चीज़ को आप कर रहे हैं. तो हमारा स्टार बज़ एक सेक्शन होता था जिसमें हम चटपटी चीज़ें भी डालते थे. ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही आप स्टारडम में तो ये चटपटा होना जरूरी है, किससे अफेयर है या क्या. लेकिन ये नहीं कि आप दूसरों को डाउन करें, डिग्रेड करें. जैसे तुमने कहा, मुझे याद है इमेजेस का ये मुकाम हो गया था कि लोग चाहते थे कि उनके इसमें इंटरव्यू जाएं, फोटोग्राफर्स के नाम बने, डिज़ाइनर्स के नाम बने, क्योंकि वो जब आता वो सर्कुलेट करता था, सब जगह जाता था. डॉन तो हर जगह पहुंचता था. तो शहजाद रॉय मेरे पास आया, मेरे घर आता था, वो करीब में ही रहता था. उसने कहा कि खुर्शीद मुझे इंग्लैंड में अपना एक म्यूज़िक वीडियो बनाना है. और एहसन रहीम होता था, तो जो अब काफ़ी मतलब वो एड्स को भी करता है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, फिल्म भी बनाई है एहसन रहीम ने. उसको वीज़ा रिजेक्ट हो गया इंग्लैंड का. ओके. तो शहजाद ने कहा कि खुर्शीद ही इज़ द पर्सन दैट हैज़ टू डू इट. तो मैंने आई वाज हेल्पफुल एज वेल. आई मीन अगर जो मेरे बस में चीज़ होती थी वो मैं कर लेती थी, एंड ही डिज़र्व्ड इट. एहसन रहीम को मैं बिलावजे, तो उसका मैंने अपने राइटर से बात की कि भाई प्लीज़ कैन यू डू द इंटरव्यू टुमारो. फिर अपने फोटोग्राफर से बात की कि कैन यू डू हिज शूट. तो उससे कहा हो जाएगा. उसका इंटरव्यू वेडनेसडे को मेरे पेजेस जाते थे, उसका इंटरव्यू मुझे ट्यूसडे को मिल गया. वो खटाखट इंटरव्यू किया, फोटोग्राफी हो गई, तो वेडनेसडे को वो मेरे पेजेस बन जाते थे. तो उसको वीज़ा मिल गया. जब वो संडे को छप के आया तो वो
हाईलाइट मिल गई। हाँ, कि उन्होंने कहा नहीं, दिस पर्सन इज जेन्युइन, सो वी वोंट स्टॉप हिम, दे गेव द वीजा। मतलब मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ कि जो चीज आप अच्छे तरीके से करते हैं उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। आजकल की जो जर्नलिज्म है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सोच बहुत बदल गई है, नॉट सिर्फ जर्नलिज्म में बल्कि हर डिपार्टमेंट में, हर जगह तुम जाओ वैल्यूज ख़त्म हो गए हैं। आप झूठ भी बोल रहे होते हैं, आप गलत काम भी कर रहे होते हैं, आप पैसे भी बना रहे होते हैं। तो वो जो एक अच्छा ज़माना था कि आप काम अच्छा कर रहे थे, दयानतदारी से कर रहे थे और दयानतदार भी थे, और ये डॉन ने भी सिखाया था। डॉन का जो माहौल था, जो लोग वहाँ पे काम करते थे, वो बड़े अच्छे घराने, खान साहब बड़ी एम्फेसिस देते थे इस बात की कि अच्छे घराने से आएंगे तो अच्छा काम होगा। तो वहाँ पे सब पढ़े लिखे लोग, लिखने वाले लोग वहाँ काम। अब मेरे जहन में क्वेश्चन पॉप अप हो रहा है, वो ये कि जैसे वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इवन बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड के किसी भी किस्म के मीडिया के साथ रिलेट होने के लिए फ़ौरन एक टैबू आ जाता है कि भाई ये बच्चे बिगड़ जाएंगे या ये अच्छे ख़ानदानों के लोग यहाँ पर नहीं जाते। अब आपका तो काम सारा सेलिब्रिटीज़ के साथ आगे पीछे, आपके ये बिग शॉट्स सारे, अब तो बिग शॉट्स हो गए, तब तो नहीं थे, सब आना जाना घर में। एंड खुर्शीद आपा को मैंने देखा है, इनके इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे जा रही होती हैं, किसी काउंसलेट जनरल से मिल रही हैं फ्रेंच के, कहीं कोई यूएस काउंसलेट जनरल के यहाँ कभी लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, एंड शी इज सो डाउन टू अर्थ हरसेल्फ। इतनी मतलब नोबडी कैन से कि ये इतने हाई लेवल हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, तो अब इनमें से अपने आप को बचा के रखना, और यू बिलोंग टू अ वेरी प्रेस्टिजियस फैमिली, तो वो फैमिली उस ज़माने में क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े व्हेन यू एंटर्ड दिस ग्लिट्स एंड ग्लैम वाला, जब इमेजेस वाला काम शुरू हुआ? कोई चैलेंजेस नहीं थे। चैलेंजेस पर क्या थे कि आप मेहनत करें, काम अच्छा करें, माहौल बहुत अच्छा था। आई हैव ऑलवेज बीन लकी, मीटिंग द राइट पीपल, वर्किंग इन द राइट प्लेस। वरना यस देयर आर प्रॉब्लम्स जहाँ लड़कियाँ काम करती हैं। शुरू में बीच में, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, आपने कहा कि आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, एंड इट इज़ ऑल्सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट फोकस्ड कि मैं काम के लिए क्या मेहनत, किससे कनेक्शन, इज दैट सो, कि वो जो आप जो जहन में लेके जा रहे हैं वही फिर आपके पास पलट के भी आ रहा होता है। आप ये बताइए कि आपने कहा कि डॉन का मिजाज, डॉन का माहौल, पढ़ा लिखा होना, वैल्यूज़ का होना, फैमिली बैकग्राउंड्स का रिच होना, आजकल ऐसा नहीं लगता कि डिसफंक्शनल लिटरेट्स आए हुए हैं बहुत सारी टॉप डिग्रीज लेकर, बहुत सारी डिग्रीज लेकर आए हुए हैं, येट दे डोंट हैव दैट डेप्थ इनसाइड, कि कोई बात अगर बताई जा रही है तो उसके तमाम एस्पेक्ट्स पे बात की जाए, या मतलब वो, आई एम सो सॉरी टू से, वो पढ़ी लिखी लोग नहीं आ रही होती, वो वेट नहीं होता बात के अंदर, वो मज़ा नहीं आता पढ़ने के बाद, वो तू तड़ाक हो रही है, या वो तौबा तिल्ला हो रही है, या गालम गलोच हो रही है। तुम उसकी बात करेंगे जो टेलीविज़न पे वो टॉक शोज होते हैं, वो तो खैर एक अलग ही कैटेगरी, एक अलग ही लेवल की, क्योंकि वो भी एक बहुत मसले मसाइल हो गए हैं कि बात तो कम होती है, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, दूसरे की बुराई ज़्यादा होती है। तो आप टॉक शोज तो हमने तो छोड़ दिया है। तो अब मैं चूँकि एक ऐसे नेटवर्क में हूँ जहाँ पे वी ट्राई टू बी वेरी, हमारा न्यूज़ चैनल भी है, तो वी ट्राई टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वी ट्राई टू लिसन टू द पीपल दैट आर इनवाइटेड, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन staying in the realms of decency। आपको बिल्कुल इजाज़त इसकी किसी को नहीं देनी चाहिए कि आप दूसरे को डाउन कर रहे हैं चीख चिल्ला के। तो एक दफ़ा ये एक ऐसा हुई थी प्रॉब्लम ऑफिस के अंदर कि द जेंटलमैन हु वाज टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स वाज स्क्रीमिंग एंड पुटिंग हिम डाउन बैडली। तो जो हमारा एंकर था उसने कहा कि देखिए ज़रा प्लीज़ ये चीज़ आप अवॉइड करिए, कि दूसरे को आप डाउन मत करिए इस तरीके से, वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आप पेश करिए, बात करिए वो उस सिलसिले में। वो नहीं माने, वो अपना वही बुरे तरीके से बात करना, और तो यू नो द एंकर क्लोज द शो द प्रोग्राम। ओके, ही सेड आई कैन नॉट। वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए थे,
तो ये चीज़ होती है कि यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। देखो मैं जिस माहौल में थी, एक तो तरबियत की बात होगी, आपके घर की तरबियत क्या बेसिक तो यही है। और एज यू सेड के हमारे घराने में पढ़ने लिखने को बहुत तरजीह दी गई। हमारी फुप्पियाँ और खालाएँ जो उस वक्त इंडिया की जो थी वो अलीगढ़ से पढ़ी हुई थी, तो हमारे यहाँ पढ़ना लिखना उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके माहौल जो है, आप जहाँ सही पढ़ रहे हो, फिर आपके घर की जो तरबियत होती है तो वो आपके अंदर ज़रूर आती है कि आप किस तरीक़े से, जो मैंने तुमसे कहा ना कि खान साहब बड़ी तरजीह देते थे इस बात को कि अच्छे घराने से लोग आएँ तो वो वहाँ का माहौल अच्छा होता है। और वो जिस तरीके से उनका हाइंडसाइट और फोरसाइट वाज सो ब्रिलियंट। अब वो कहते थे कि भाई सब लोग मिलके, जहाँ लोग इकट्ठा काम कर रहे होते हैं तो वहाँ थोड़े झगड़े भी होते हैं, और यंगर जनरेशन के तो होते ही है। मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ कि हमारे, चूँकि मैं इमेजेस की एडिटर थी, शोबिस की एडिटर थी, तो एक सईद मलिक होते थे, म्यूज़िक कॉलेजिस्ट, वेरी वेल नोन नेम, जो म्यूज़िक के ऊपर लिखते थे। लेकिन वो एक विद टाइम यू हैव टू चेंज। अब वो आप क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर कहाँ तक देंगे? तो द रिव्यू, वो ज़रा सीरियस चीज़ें होती थी, तो रिव्यू के जो एडिटर थी, जो इंचार्ज थी, उसने मुझे पकड़ा दिया 3-4 महीने रखने के बाद कि भाई ये सईद मलिक का, मुझे पसंद है, मैंने तो नहीं उनको कहा था कि मेरे लिए लिखें, आई डिडंट असाइन हिम टू डू इट, तो वो मैं रखा हुआ था। अब वो जब उन्होंने फ़ोन किया सईद मलिक ने कि भाई अभी तक नहीं छपा है, तो उन्होंने कहा वो तो इमेजेस के पास है, उस एडिटर के पास है। तो उनका एक नाराज़गी का कॉल आई कि जी आपने इतने दिनों से रखा हुआ है और आपने ये किया हुआ है। फिर उन्होंने लेटर भी बड़ा वैसा लिखा। आई वॉज वेरी अपसेट। छोटे भी होते हैं ना, तो आपकी यानी जिस आप काम कर रहे होते हैं वहाँ भी तरबियत होती है। और ये खान साहब ने मेरी तरबियत की, वहाँ पे जितने लोग थे उनके। आजकल के दौर में तुम देखो, जो नए लोग आते हैं ना, वो मेहनत नहीं करते हैं। मैंने अपने डॉन में ही देखा, जो नए लोग आए, दे वांट टू गो अप द लैडर बट दे डोंट नो हाउ टू क्लाइंब वन रंग आफ्टर द अदर। कि आप सीखते जाइए और थोड़ी सी तरबियत भी होनी चाहिए, सीखिए। पैसे चाहिए बट वो सीखना नहीं है, इस एफर्ट से नहीं गुजरना है वो अपने। तो जब सईद मलिक साहब का लेटर आया और मैंने खान साहब को जाके दिखाया, मैंने कहा देखिए, एक तो उनका फ़ोन आया तो उन्होंने ऐसी बात की, ये लेटर इतना ख़राब है। खान साहब ने मुझे देखा, उन्होंने कहा इसका आप जवाब बनाइए, आप लिखिए और मुझे दिखा दिएगा। तो मैंने लिखा, तो मैंने थोड़ा सा उस पर कि मैंने आपको नहीं असाइन किया था और आपने इस तरह से मुझसे बात की है और ये वो ये, तो थोड़ा ऐसा, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन ये कि मैं, फिर खान साहब ने उसको देखा और मुस्कुराते गए और काटते गए। ओके, लेकिन इसको आप इस तरह से रिफ्रेश करिए, आप इसको इस तरह से लिखिए। और फिर एंड में उन्होंने कहा कि देखें, दरवाज़ा कभी पूरा बंद मत करिए। सुभान अल्लाह। हमेशा कीप इट अजार। मुझे याद है क्या उनका सबक था कि वो मुझे सिखाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। He made you go through all of it. And he gave me time because he was a busy boy, he was the editor. How to went out positively क्योंकि वीकलीज तो देखते ही थे, लेकिन डेली डॉन निकालना वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत सबसे तकलीफ दे तो वही होता है ना कि आपको हर रोज़ वो अखबार का देखना और सही चीज़ जा रही है। वो हर वक्त कोर्ट में पहुंचे हुए थे, केसेस हो रहे होते थे, इस्लामाबाद उनको जाना पड़ता था क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिवली लिखा जाता था, तो वो उसमें फिर कॉल हो जाती थी कि ये क्या है और क्यों है। तो जब उन्होंने ये बात समझाई कि कल आपको अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको झुकना पड़ेगा, तो आप ये नहीं करें। आप उनको बड़ी नरमी से लिख के दिए, एंड देन अगेन शाइस्तगी के साथ। तो दैट वाज अ लेसन फॉर मी। और फिर उनसे, सईद मलिक से इतनी दोस्ती हुई कि जब मैं लाहौर कभी जाती थी तो वो मुझसे मिलने आते थे, तो वरना वो तो फिर ताल्लुकात ही ख़त्म हो चुके होते। तो ऐसे लोग, जब तुम्हारा माहौल अच्छा होगा ना, तो खुद तरबियत भी होगी और तुम खुद अच्छी होगी। अब आजकल के दौर में वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, आपकी एजुकेशन ही को सत्यानाश कर दिया गया है।
तो आप बच्चे क्या Values जो लेके तुमने आगे कहा जाना। कि भाई PhDs होते हैं या यहाँ के और MA किए हुए होते हैं, लेकिन वो सीखे हुए नहीं होते हैं, तो उनकी वो सोच भी ऐसी ही होती है। तरबियत की कमी को डिग्री तो या तालीम तो पूरा नहीं कर सकती है ना। तरबियत के साथ साथ पढ़ाई भी, आपके टीचर्स भी बहुत अगर अहम अच्छे होते हैं है। ना तो वो आपके मेंटोर्स आप Yes. अब आप माशाल्लाह बार बार इस बात को जिक्र करिए कि लोग बहुत अच्छे मिले, तो हु वाज योर इंस्पिरेशन? आई नो कि यू वर वेरी क्लोज विद हसीना आपा एंड नरमल मकसूद एंड बजिया एंड ऑल दीज नेम्स जो कि हु आर बेसिकली द पायनियर्स जिसमें मीडिया के अंदर एट एवरी लेवल। तो was there any inspiration आपकी ज़िंदगी में to come on this side? हसीना आपा से क्या आपका एक बहुत ही एक अलग ताल्लुक था, वो उस पे ज़रा सा बताइए। देखो, इंस्पिरेशंस तो आपकी ज़िंदगी में होते हैं। सबसे बड़े जो पहले वाले इंस्पिरेशन खान साहब, जिन्होंने हमें सिखाया। फिर उसके बाद चूँकि मैं शोबिस में थी तो आई गॉट टू नो ऑल दीज वंडरफुल पीपल। तो अनवर साहब से भी वो रहता था। अनवर साहब पेंटिंग भी करते हैं, पता है, ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो मेरे लिए बना के भी लाए थे पेंटिंग वहाँ ऑफिस के अंदर। और फिर उनके इंटरव्यूज़ उनको कभी कभार लिख के भी देते थे। ज़िया मोहिउद्दीन ने भी हमारे लिए लिखा है। तो हसीना आपा से ज़ाहिर है फिर आप वैसे भी उनसे रिश्तेदारी भी होती थी दूर की, और फिर उनके ग्रुप में भी मैं आ गई। इनका बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप होता था उनके दोस्तों का जो बचपने की। तो वो दावतें हो रही हैं, सालगिरहें मनाई जा रही हैं, तो हम उसमें सबसे छोटे थे तो उसमें शामिल हो गए। फिर हसीना आपा के साथ एक साथ साथ मैं रहने लगी, इसलिए कि शोबिस के ताल्लुक़ रहता था हर वक्त। वो अपना वो लिखना लिखाना उनका होता था। फिर दोस्ती जब आपकी बहुत हो जाती है ना तो फिर मतलब वो एक वी सॉर्ट ऑफ बिकेम इंसेपरेबल कंपेनियंस। वो बाहर ट्रैवल करती थी, वो टर्की गई तो मैं उनके साथ टर्की गई घूमने के लिए। इंडिया वो जितनी दफ़ा 2-3 दफ़ा उनके साथ जाना हुआ। फिर हम लोग जैसे ट्रैवल करते थे पाकिस्तान के अंदर, तो वो वहाँ साथ में जा रही होती थी। बहुत उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा। और बहुत आर्ट्स काउंसिल में जा रहे हैं तो साथ जा रहे हैं, या कोई फिल्म प्रीमियर है तो उसमें साथ जा रहे हैं। फिर मुश्ताक यूसुफी साहब, मैं ये तुमसे कह रही हूँ कि मेरी खुश नसीबी थी कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ, गौहर नायाब, जो अब वो सब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ज़िया साहब चले गए, ज़िया मोहिउद्दीन, यूसुफी, मुश्ताक यूसुफी साहब। वो एक माहौल होता था वहाँ पे। वो भी आती थी, ज़हरा आप आती थी, ज़हरा ने कहा। बजिया, फिर मैं लिखती भी थी, मैं इंटरव्यूज़ भी करती थी। तो बजिया बड़ी मोहब्बत वाली। मैं बीमार पड़ी थी तो फिर ज़रा बेहतर हुई, फिर डॉन वापस फिर आ गई। 1 साल तक आई वाज आउट ऑफ द पिक्चर। तो बजिया का मैं इंटरव्यू करने गई कि मुझे लिखना है। बजिया ऐसे मतलब अपना तो काम कर रही हूँ डॉन में, लेकिन आई वांटेड टू राइट एज वेल। तो बजिया के पास गई तो बजिया ने कहा कि बच्चा कहती थी, बच्चा क्या करूँ तुम्हारे लिए? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खजूर का वो बनाती हूँ शेक। तो उन्होंने खजूर, दूध मंगवाया, दूध ख़त्म हो गया था, दूध मंगाया, फिर वो खजूर डाल के उन्होंने वो ब्लेंड करवा के वो पिलाया। तो देखो ये लोग, इन लोगों की देखो ये खुलूस, और क्या खुलूस मोहब्बत, और क्या माहौल, हमें फिक्र भी नहीं होती थी। और एक चीज़ और भी, मैं चूँकि इमेजेस की एडिटर थी और मेरे पास इतने लोग आते थे, फिर मेरे इतनी मतलब हर जगह बुलाई जाती थी, बट आई ऑलवेज ड्रू अ लाइन कि आपको अपनी इज्जत खुद करानी होती है। आप लोगों से मिल रहे हैं, ठीक है, आपका बैकग्राउंड, आपके वालिदैन ने आपको इजाज़त दी, आपने पढ़ाई की, आप जॉब कर रहे हैं, बट आपकी एक जिम्मेदारी भी होती है। तो कभी आई नेवर क्रॉस दैट लाइन एंड आई नेवर अलाउड पीपल टू क्रॉस दैट लाइन। तो बड़ी इज्जत के साथ मेरी, हालांकि मैं किस माहौल में थी, शोबिस का माहौल, exactly, लेकिन वो दौर भी ज़रा बेहतर था और लोग भी ऐसे थे। आजकल का मैं बिल्कुल माहौल घबराहट होती है सुन माहौल के, बिल्कुल वो जो यंग पीपल वो उस माहौल में रह रहे हैं कि उनको वो चीज़ों का एहसास भी नहीं है कि क्या
कहाँ ओवरस्टेप कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना इसकी, फिर आप पीयर प्रेशर होता है, आप उस प्रेशर में जब रहते हैं तो आप वो ऐसे ही हो जाते हैं। और फिर जब आपको कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो फिर आप बाय ऑल मीन्स आप स्टेप आगे, यस। तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आप अपना परस्यू करिए, बट ये आपके ऊपर है कि आप माहौल को अपना ख़राब नहीं होने दें, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और आप करिए जो आपको करना है। वो मेहनत से हासिल होगा, मेहनत करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत करो, पढ़ो। अगर आप जॉब करें तो जिस शोबे में आप उसको अच्छी तरह से सीखिए आप, और उसमें मेहनत करें। ट्रू टू योर पैशन, अपनी कॉलिंग को आप जाने, बिल्कुल उस पे फोकस्ड रहे। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि आई वाज इन डॉन एट दैट टाइम, तो माहौल बहुत अच्छा था। मैं रात के 11 बजे तक भी बैठी रहती थी अकेली कमरे में, मुझे कोई खौफ नहीं होता था। अब हम नेटवर्क में हूँ, मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे तक अब तक बैठी रहती हूँ। 5th फ्लोर है मेरा, PR पब्लिकेशंस का हेड डिपार्टमेंट, वहाँ बैठी रहती हूँ। तो चोर भी आया है, किस तरीके से आए 5th फ्लोर पे, बाहर से चढ़ के दीवार। तो इत्तेफाक से मैं जा चुकी थी। मैं बाद में सोचती रही कि मैं अगर वहाँ पे होती और वो चोर आता, किस तरीके से, आज तक वो नहीं समझ पाए कि वो चढ़ा कैसे। तो अब वो एक बैठता है, हमारा गार्ड बैठता है वहाँ। सो आई नो ही इज सिटिंग इन द लाउंज एरिया एंड आई एम इन माई रूम, तो परेशानी नहीं होती है। फिर वो कहते हैं वहाँ हॉन्टेड भी है थोड़ा सा, तो कब ये भी फिक्र, अच्छा डॉन के लिए भी कहते थे हॉन्टेड है रियली। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमारी मुलाकात किसी ऐसी चीज से हुई हो। हाँ, और यहाँ पे भी, हम में भी, आई थिंक आप काम में इतना बिजी रहती है तो रास्ते में खुर्शीद आपा मुझे बता रही थी कि कितनी अभी लास्ट मिनट फ़ोन कॉल्स हो रही थी, फिर उसको फॉलो अप करना था, फिर असर का टाइम हो गया, फिर नमाज भी पढ़नी थी, फिर शी हैड टू रीच हियर फॉर द पॉडकास्ट, तो ट्रैफिक का भी, तो इतने सारे टेंशन, इतने सारे कामों के साथ। हाँ, तो वो बदमिजाजी भी आ गई है, शोज ऑन योर फेस, नींद रात को नींद वो ऐसी हो रही होती है। तो दिस इज अच्छा खुर्शीद आपा, नाउ लेट्स, मुझे बहुत देर से सब्र मैं करके बैठी भी हूँ। मुझे ये बताइए, ज़िंदगी में बीमारी, परेशानियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, एंड यू आर माशाल्लाह अ कैंसर सर्वाइवर। हाउ डिड दैट अफेक्ट यू? बिकॉज हमने आपको देखा कुछ अरसे के लिए, आप गायब हुई, वी सॉ यू इन पेन, वी सॉ यू गो टू हॉस्पिटल सो मैनी टाइम्स, कीमो एंड ऑल दैट, एंड बट येट माशाल्लाह खुर्शीद आपा केम बैक अगेन in full energy, और हम सब लोगों के लिए that is why I said she is my inspiration, कि with all the pain she went through, I mean unimaginable pain, and then again back on track, even stronger than before, and इनके अंदर जो composure था वो हम लोगों को यकीन नहीं आता था देख के कि where is she getting all that strength। तो इसके बारे में ज़रा सा प्लीज़, क्योंकि वी नीड टू नो। हम छोटी सी तकलीफ होती है, हाय हुई तौबा तिल्ला, शोर मचाना शुरू करते हैं, द लाइफ एंड्स, ओ माय गॉड, अब इसके तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए कि कैसे, हाउ डिड यू, व्हाट वाज दैट मोटिवेशन? देखो सारा, जब कोई मुश्किल पड़ती है ना तो इंसान, अल्लाह इंसान के अंदर लचक देता है। तो वो, अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हो ना, वो मुश्किल होता है। आपके वालिदैन आपके ऊपर एक, आपके सर पे साया है, अनकंडीशनल सपोर्ट। हाँ, और आप जब वो चले, आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते हैं उनके बारे में कि उनके बगैर आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन वो चले जाते हैं और आप जिंदा रह रहे होते हैं। तो वो जो एक तसव्वुर करते हैं ना, इसी तरह से जब आपके ऊपर पड़ती है तो आप, अल्लाह आपको हिम्मत देता है, आगे बढ़ाता है ज़िंदगी में। जब मुझे ये बीमारी हुई, बहुत अरसे तक तकलीफ़ चल रही थी, तो मैं कहती थी पेट की तकलीफ़ है, मैंने थोड़ा निगलेक्ट किया। और ये मैं अब कहती हूँ लोगों से कि प्लीज़ आप लोग निगलेक्ट मत करें अपने आप को। आपको तकलीफ़ अगर हो रही है, डू गो टू द डॉक्टर, क्योंकि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9।
और आप उस अजियत, उस तकलीफ़ से भी बचते हैं कि अगर वो फ़ौरन चीज़ को आप पकड़ लें। मैं उसको नहीं तवज्जो दे रही थी, मैं डरपोक बहुत थी, मैं इंजेक्शन से इतना डरती हूँ। तो मैंने कहा ऑपरेशन कैसे होगा। तो आई हैड एन ओवेरियन सिस्ट, और वो मैं होम्योपैथ दवा खाती रही, क्योंकि एलोपैथ में इसका सिर्फ इलाज है कि ऑपरेशन। तो वो मैं खाती रही, मामला मैं समझी बेहतर हो गया, बट वो नहीं हुआ बेहतर। फिर जब वो सिस्ट बढ़ गई और फिर एक दिन वो कैंसर में तब्दील हो गई, फिर मैं पछताती रहती थी कि अल्लाह ये मैंने क्यों ऐसा किया। मैं चली जाती, ऑपरेशन करा लेती, लेकिन वो इस तकलीफ़ से तो बचती कि इतना बुरा ऑपरेशन, फिर उसके बाद कीमोज आपके को बहुत तकलीफ़ देते हैं। फिर आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और आप CT स्कैन्स और पता नहीं क्या क्या। तो इससे बेहतर ये है कि डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। ये मेरी मैसेज सबको कि नेग्लेक्ट मत करो अपनी सेहत को। और फिर आप सिर्फ सफ़र नहीं करते हैं, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। जब आप सीख लेते हैं ना, आपके किसी चीज़ से आप गुज़रते हैं, आप सीख लेते हैं कि हाँ इसको नहीं रिपीट करना है। अल्लाह का करम था कि वो वक्त गुज़र गया, वो तकलीफ़ जो थी वो फिर आप उसको भूलने लगते हैं और आप ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। और मैंने अपने ऊपर तारी नहीं की बीमारी। मुझे याद है कि हबीब पब्लिक की ही टीचर्स जो थी, उनको जब पता चला, जब फिर दोस्तियाँ रहती हैं ना आपकी कायम, तो मुझे हुए थे उस वक्त 17 दिन हुए थे ऑपरेशन करवा के, और मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रखा, और 5 दिन मैं हुए थे घर पे। तो वो लोग मिलने आए, तो कुछ तो कहते नहीं, मैं इसको हम इस हाल में देख नहीं सकते हैं, तो पता नहीं किस हाल में पड़ी होगी। तो जब वो आए तो मैं चल फिर रही थी और हंसी मजाक बातें, तो कहने लगे हम तो कुछ और सोच के समझ रहे थे कि तुम कैसी होंगी। लेकिन सारा इतने लोगों ने मुझसे मोहब्बत की, इतने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, मेरे डॉन के लोगों ने इतनी मेरे लिए दुआएं की। अम्मी कहती हैं कि तुम बेहतर हुई है दुआओं से, माशाअल्लाह, दूसरों की दुआओं से। तो आप जब किसी चीज़ से गुजर जाते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो एक चीज़ वो हो जाती है। कीमोज भी हो गए, एक बुरा वक्त भी गुजर गया। डॉन कितने अरसे तक मैं नहीं गई, फिर वापस आई तो फिर काम में लग गए, फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो दुआ इज़ वन एलिमेंट जिसके अंदर हमें क्योंकि आई एम इनटू एजुकेशन और पेरेंट्स से बात होती रहती है, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि दिल छोटा मत किया करें, परेशान ना हुआ करें, कभी कोई भी इशू आए दुआ करें। और हम दुआ को भूल जाते हैं। अल्लाह मियाँ तो कह रहा है कि मुझसे मांगो, और हम ही कोताही कर जाते हैं कि हम मांगते नहीं हैं। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना है बहुत ज़रूरी है आपसे, कि आप माशाल्लाह यू लिव इन अ वेरी रिच कनेक्टेड फैमिली, ठीक है, रिचली कनेक्टेड फैमिली के बहुत करीब है हम सब लोग एक दूसरे से। तो उसको मैनेज करना, अपनी जो ख़ानदानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई नो खुर्शीद आपा इज़ एवरीवेयर, किसी की यहाँ शादी हो, गमी हो, कोई भी मौका हो, खुर्शीद आपा इज़ ऑलवेज देयर। बेशक थोड़ा सा लेट पहुँचती हैं अपने काम की नौयत की वजह से, मगर शी इज़ ऑलवेज देयर। एंड देन जो प्रोफेशनल इनकी कंट्रीब्यूशन है वो तो अभी हम सब सुन ही चुके हैं। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? एंड इससे प्लीज़ इसके साथ सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि ख़वातीन के लिए जो आप कोई अगर मैसेज देना चाहें कि अपने आप को लिमिट मत करें कि मैं ये कर सकती हूँ और बस अब मेरी बस हो गई, इससे ज़्यादा मैं ये नहीं कर सकती, मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो बीच में आ रही हैं। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट इन अ मैसेज, अ क्विक मैसेज? देखो, होता ये है कि अब तुम कह रही हो ना कि मैं समझती हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब हम एक माशरे में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। मेरी कोशिश है, जब मैं बीमार पड़ी मेरे पास इतने लोग हॉस्पिटल आते थे, फिर घर पे इतने लोग आते थे, तो वो इसलिए कि आप
मिलजुल के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। माशरा जो है ना वो अकेले रहने का नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बड़ी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और सबके साथ होता है। ये सिर्फ मेरे साथ, तुम्हारे साथ, किसी हर एक के साथ होता है। इट्स हाउ यू कॉम्बैट इट, हाउ यू ट्राई टू लिव अ लाइफ विद दीज प्रॉब्लम्स। तो कभी हिम्मत ना हारिए और अपना काम करते रहें, मेहनत के साथ काम करें। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। आई नो दे वर डेविस्टेटेड जब मैं बीमार पड़ी हूँ। तो इट्स नॉट जस्ट यू गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, योर होल फैमिली गोज थ्रू अ बैड टाइम। और मेरे जो ख़ानदान था, मेरे कज़न्स थे, मेरे दोस्त अहबाब थे, उनकी जो मुझे सपोर्ट मिली। तो मेरी खाला कहती थी तुम लोग आते हैं, तुम थक जाती हो, तुम देखो मैं मतलब अब मैं अलाउ नहीं करूँ। मैंने कहा दे माई लाइफ लाइन। वो आते हैं, मेरे दिल को हल्का करते हैं, मुझे हंसाते हैं, बात करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, कि आप गिव एंड टेक। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों की खुशी में भी जाऊं, शादी में भी जाऊं, चाहे मैं वो जैसे तुमने कहा कि मैं लेट पहुंचती हूँ क्योंकि ऑफिस में इतना मेरा लेट हो जाता है। बट एवरीबॉडी नोज कि शी इज़ गोइंग टू बी हियर, शी इज़ गोइंग टू बी लेट, बट शी इज़ गोइंग टू बी हियर बिकॉज आई लाइक टू मीट पीपल, आई लाइक टू बी अराउंड पीपल। कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको ज़िंदगी, देखो मेरी बीमारी आई, उसको मैं अकेली नहीं सह सकती थी। मेरे इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने मुझे सहारा दिया। इसी तरीके से मैं अपना एक जल्दी से छोटी सी बात बताती हूँ कि मेरी डिवोर्स बहुत बहुत पहले हो गई थी, और मैं बाहर भी गई हूँ सब कुछ। मैं अगर उसको लेके बैठ जाती तो मैं कहीं आगे नहीं बढ़ सकती थी। मैं वो एक बहुत बुरा वक्त था, बहुत तकलीफदेह वक्त था, वो गुजर गया। और उसके बाद फिर मैं ज़िंदगी में आई, मैंने इतने अच्छे वक्त गुजारा है, अच्छी मुझे नौकरी मिली, मुझे अपने घर की सपोर्ट थी, अपनी जहाँ मैं काम करती थी वहाँ लोगों की सपोर्ट थी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह से जब मैं बीमार पड़ी तो वो एक अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी, और फिर मैं आगे बढ़ी। और अगेन अगर मैं घर बैठ जाती, हिम्मत नहीं है, तकलीफ हो रही है, तो अब बीवी होती है तो तकलीफ तो होती हैं, हर एक के साथ होती हैं, मेरी थोड़ी ज़्यादा हैं। कीमोज आपको बिल्कुल ही सत्यानाश कर देते हैं आपका। लेकिन ये कि इट्स अप टू यू हाउ यू फाइट योर प्रॉब्लम्स, हाउ यू ओवरकम योर प्रॉब्लम्स। तो मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मिलजुल के, एक जो है ना, अपने आप को अकेला मत करिए, आप लोगों के साथ मिलजुल के रहें, नज़रअंदाज करिए। गुस्सा भी आता है बाज़ दफ़ा, लेकिन कोशिश ये करें कि नज़रअंदाज करें बातों को, और अपनी इज्जत भी करें, इज्जत करवाएं भी, और दूसरों की भी इज्जत करें। बेहतरीन बात। और मिलजुल के रहें, अपनी काम में मेहनत करें, दयानतदारी से काम करें, तो आपका अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को ना भूलें। हर चीज़ अल्लाह आपके लिए करता है। आप दुआ मांगिए, परेशानी होती है, जब आप परेशान होते हैं आप अल्लाह का नाम लेते हैं, माँ का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो ये कुदरती चीज़ है। दिस इज़ हाउ गॉड मेड यू ना, सो यू वेरी क्लोज टू गॉड। तो अल्लाह से ताल्लुक़ रखो, लोगों के काम आओ, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारो, और अल्लाह को भूलो नहीं। ये मेरा मैसेज है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात। रब को याद रखें, रब से दुआ करें, परेशानी हो या खुशी हो या कोई खौफ का आलम हो, हर मौके पे अपने रब को याद रखें, लोगों से मिलजुल कर रहें। लोग हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हम कट के नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आबा आपके वक्त का और इतनी ज़बरदस्त बातों का। एंड दैट इज़ वाई वी से द गुड साइड, पीपल of Pakistan who make Pakistan what Pakistan is, and there are millions of such people who are doing wonderful things at their own end in their own spaces. Thank you again for being with us. Thank you for giving me this opportunity कि मैं बात करूं. I'm so blessed to be in this
conversation and मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. And last but not least, I would like to thank Rehan Allawala for providing us this platform, and of course my sweet darling student Saad Allawala for motivating me to initiate this podcast project. So I'm indebted for that. And again, जो कुछ आज मैंने सीखा इनकी presence में इनसे बात करके, it's going to help me a long way, inshallah. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.